Good morning, welcome, namaskar, adab, sat sri akal, kero hala hai, kasakai. I am Abha, welcoming you to my program Spotlight with Abha. Today, I'm going to bring you such a fantastic, charismatic, awesome, whichever adjective you want to use for the best version of anything that I can use for this person. So I am bringing Major Muhammad Ali Shah, the craftsman of his own trade, the TED Talk speaker, the renowned TV panelist, into my spotlight. So, Major, please welcome to my show. Good morning. Morning, Abba. Thank you very much for having me over here. Such a Yeah, privilege and honor. Always nice speaking to you. thank you so much. So, Major, we have already discussed about your journey as a dedicated actor towards different movies and the upcoming movie which is very shortly is going to release on Z5 on 31st July, right? Yara, right? So we'll be starting with that only. That how was your repo with the crew members and the director? My rapport with the crew members and director was amazing. I mean, I used to report on the sets on my own, half an hour before the time that was given to me. And I would be there throughout. And since I knew the lines of all the actors, not just mine, of Okay. every single character, I knew every scene. I mean, I knew the script backwards, scene-wise. So even if they decide to shoot the film, आज ये scene नहीं, आज वो scene करते हैं, वो मेरे को backwards मालूम था. किसके बारे में क्या है. But that's the passion, the fire, the junoon, the craziness, the divangi is there. So I knew that. And they were all very impressed. Apart from that, जो dress दादा होते हैं, who would assign us to, who was doing a commendable job. One fine morning, we couldn't trace him. And director साहब ने बोला फटाफट जसजीत को लाओ और वो शॉट करते हैं. And luckily, I had learned to tie the turban myself. तो मैंने फटाफट पगड़ी बांधी. While the whole world was looking out for dress दादा, मैं पगड़ी बांधी and I was there and everybody was surprised. Apart from that, मैंने कहा कोई बात नहीं सर, मैं हर काम करूंगा फिल्म के लिए. So where I was residing in the hotel, I had the option of staying in a luxury hotel. I said no. फालतू में प्रोडक्शन यूनिट का पैसा क्यों बर्बाद करना है भाई. रहना तो है ना, दिन भर शूटिंग कर रहे होंगे, रात को जाके सोना तो है. So I slept in a small hotel where the crew, with the spot boys, the lightsmen were sleeping. तो मेरे कमरे के अंदर I was sharing the room with some lightsmen. तो जब पहले तो एक सिंगल रूम दिया गया मेरे को, तो मैंने being my accommodating nature, फौजी आदमी है, we are very accommodating, very adjusting and very very adaptive. तो I came forward, I told the production department कि भाई देखो, money saved is money gained. भलाई I know you can afford it. I know you can afford it. कितना फर्क पड़ेगा, कुछ चंद हजारों का पड़ेगा, कोई बात नहीं, बूंद बूंद से घड़ा बनता है. And I came forward, I said, मैं सिंगल रह रहा हूँ कमरे में, कोई बड़ी बात नहीं है. If you want, you can send some people. और वहां पे एक डोमेट्री टाइप थी, एक रूम में परमिशन लेके 10-15 स्पॉट बॉय, ड्राइवर्स, लाइट्समैन वर स्लीपिंग डाउन. तो मैंने जितना आराम मिलता. एंड फौज में एक सेइंग है, the safety, honor, welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. तो वही चीज मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल करी. There was मैंने कहा कि army man was there always inside, right? Who was continuously guiding you. Let be helpful to the people. तो वही फिलॉसफी मैंने यहाँ पे भी इस्तेमाल करी. तो जितने हमारे क्रू वर्कर्स थे, हमारे लाइट्समैन थे, मैं बोला जितने लोग मेरे कमरे में आ सकते हैं आ जाएं. सो आई शेयर्ड माय रूम विद सम लाइट्समैन, व्हिच इज फाइन, एब्सोल्युटली फाइन. आप आर्टिस्ट हैं, आप एक्टर हैं, एंड ये मैं सो व्हाट, एक्टर है ना. मेरा ऐसा मानना है, मेरा पर्सनल मानना है कि एक्टर जो होता है वो मजदूर होता है, क्योंकि एक्टिंग मेहनत का काम है, मजदूरी का काम है. इट्स अ वेरी नॉन ग्लैमरस प्रोफेशन. लोग कहते हैं भैया एक्टिंग इज अ ग्लैमरस प्रोफेशन, फिल्म इंडस्ट्री इज अ ग्लैमरस प्रोफेशन. नहीं भैया, हम थिएटर से आए हैं, हार्डकोर थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं. आई एम फ्रॉम अ हार्डकोर थिएटर फैमिली. सो थिएटर में इट इज नॉट जस्ट कि स्टेज पे आए, लाइक आपके पीछे स्पॉटलाइट है, रंगमंच पे आ गए और मैं लाइनें बोल दी. नो, इट इज मच मोर टू दैट. जब तक आपने कॉस्ट्यूम इस्त्री नहीं करे, 2-4 कीले
नहीं ठोकी, झाड़ू नहीं लगाई, लोगों को चाय नहीं पिलाई, आपको सबकी लाइनें नहीं पता है, आपने क्या थिएटर करा भैया? सो बिकॉज हमारी ट्रेनिंग, मेरी ग्रूमिंग एक थिएटर से हुई थी, दैट इज व्हाई आई वाज वेरी वी ऑल आर पैशनेट, बट आपको फर्क दिख गया था एक थिएटर आर्टिस्ट में एंड अ पर्सन हु इज नॉट इन थिएटर। और वही थिएटर मेरे को कई चीजों में काम आया, वही थिएटर एक्सपीरियंस मेरे को एज अ पब्लिक स्पीकर काम आता है, वही थिएटर एक्सपीरियंस मेरे को टेडेक्स टॉक्स में काम आया, वही थिएटर एक्सपीरियंस मेरे को जोश टॉक्स में काम आया, वही थिएटर एक्सपीरियंस मेरे को एमएस टॉक्स, मोटिवेशनल स्पार्कलिंग टॉक्स जो होती हैं उसमें काम आया, वही थिएटर एक्सपीरियंस मेरे को कॉर्पोरेट टॉक्स में काम आता है, वही थिएटर मेरे को वेबिनार्स में काम आता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर अभी मैं आपको, जहाँ पे आप स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, तो एक चीज जानना चाहूंगी, यू नो हाउ यू हैव डाइवर्टेड फ्रॉम लाइक एक्टिंग to TED Talk speaking. You know what? Last year, 2019, in the start of 2019, I got an offer, I got an invitation to speak on a TEDx platform in Amritsar, Mount Literala Z School, TEDx Youth. मैं ज़हन में था कि TEDx is only for people who are accomplished, high achievers, who have done something big in life. And I don't consider even now, and the fact that I have not done anything worthwhile, I haven't done anything like really to write home about, apart from the fact, yes, I served my country while I was in the army for 5 years, the short service commission वो मैंने complete करी। Apart from that, मतलब कोई इसमें achievement नहीं है मेरी कोई। तो मैंने उनको लिखा कि भाई नहीं, you have got through the wrong, Mohammed Ali Shah. I am not the same person you're looking for. Then they got back, नहीं, you are the person, we want you only. तो मैं कहा भाई why me? और मैं ज़हन में था, unless you have climbed the Mount Everest or swam the English Channel or won an Olympic gold, आपको TEDx पे क्यों बुलाएगा कोई? मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मैंने I have given 16 international TEDx talks and each TEDx talk में मैंने देखा है, I have seen a rickshawala speaking with me, I have seen a watchman speaking with me, I have seen a normal आम इंसान speaking with me, and इसकी खास वजह ये थी, जब मैं अमृतसर में 15 मिनट में 15 minutes, a TEDx event is normally for 18 minutes. अब 15 मिनट में ही मेरे को on my talk, not that my delivery was good or I spoke something exceptional, but Punjab में, Amritsar में, there's a lot of respect for the army. So I think respecting that, the audience got up 3 times above. During my talk, I received 3 standing ovations during the talk. Talk खत्म नहीं हुई और जनता इज्जत दे रही है। उसके बाद फिर अगला TEDx का इन्विटेशन आया। TEDx एक CMRTC कॉलेज है हैदराबाद में, वहां पे भी वही हुआ। People were clapping and they were, मतलब वहां पे every sentence I speak तालियां, every sentence I speak तालियां। मैं कहा भाई ये मजा है। उसके 2 हफ्ते के बाद आया TEDx रायपुर से, अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज। ऐसे करते करते अभा एक ऐसा सिलसिला बन गया कि साल के आखिर में कोई एक ऐसा TEDx इवेंट हिंदुस्तान में नहीं हो रहा था जहां पे उनको लाइसेंस मिला हो और वहां पे मेरे को इनविटेशन मेल ना आ गई हो that we would like you to come and speak on our event. अब एक गलत फहमी है लोगों में कि TEDx मतलब आप एक बार या 2 बार बोल सकते हैं, बार बार नहीं बोल सकते। गलत फहमी है ये, मैंने साबित कर दिया है ना। देखिए, the whole fund of TEDx is it's about ideas. The tagline of TEDx says ideas worth spreading. आप एक आइडिया नहीं रिपीट कर सकते, आप एक टॉक नहीं रिपीट कर सकते। स्पीकर आके 100 बार 100 मर्तबा 100 टॉपिक्स बोले, कोई हर्जा नहीं है। उसके बाद मेरे को जोश टॉक्स का आया, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी, और कुछ चंद घंटों में 3-3 लाख व्यूज आ रहे हैं यूट्यूब पे। फिर MS टॉक्स का आया, मोटिवेशनल स्पार्कल टॉक्स, और उसके बाद टेलीविजन पे लोगों को बुलाने लग गया। फिर हिंदुस्तान का कोई एक टेलीविजन चैनल नहीं है जहां पे जाके मैंने पैनल्स पे मैं बोलता नहीं हूँ। एंड ऐसे करते करते माय जर्नी एज अ स्पीकर स्टार्टेड। फिर हुआ यूं, 1 साल भी नहीं हुआ है अभी, 1 साल भी नहीं हुआ है। लास्ट ईयर बैंगलोर से वन कंपनी वांटेड मी टू कम एंड स्पीक। दे टोल्ड मी, सर वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ स्पीकर, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एन एक्टर, वी आर नॉट लुकिंग फॉर अ स्पोर्ट्समैन और अ म्यूजिशियन, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली we are not looking for a celebrity either. What we are looking at is we want specifically and only Major Muhammad Ali Shah to come and speak to us. Now that was a compliment. अरे यार, if someone is wanting you, कोई आपको चाह रहा है, आप थोड़ा मना कर पाओगे।
And then what happened? I said, भाई उस दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि I was working on a film called The Broken Window, which has been produced by Priyanka Chopra. There's Seema Biswas and उसमें बहुत अच्छे कलाकार हैं उसमें. अब मैंने कहा भाई इस दिन तो मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरे को दोपहर को एक ऑडिशन देनी है, शाम को एक रिहर्सल पे जाना है और रात को एक प्ले देखने जाना है पृथ्वी थिएटर जुहू में. मेरे फ्रेंड का प्ले था फॉर विच आई हैड कंट्रीब्यूटेड. आई वाज अ कंसल्टेंट, आई हैड हेल्प्ड आउट थोड़ा बहुत, तो मेरा हक बनता था वहां पे वो प्ले देखने का. तो आई सेड आई कांट कम. ही सेड सर प्लीज कम, वी विल फ्री यू बाय आफ्टरनून, कम बाय द अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट एंड वी विल मेक श्योर यू गो बैक टू बॉम्बे ऑन टाइम. मैं फ्लाइट्स देखी, अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी बॉम्बे टू बैंगलोर. अ रिटर्न फ्लाइट दैट टाइम दैट डे फ्रॉम बैंगलोर टू बॉम्बे वाज ओनली एट नाइट, लेट नाइट. मतलब मेरे तीनों काम मिस हो जाते हैं. अब आभा सुनिए, ये सुनिए, ये ड्रीम कम ट्रू फेरी टेल कहानी है. फेरी टेल कहानी. क्या हुआ? उन्होंने एक प्राइवेट जहाज भेजा. क्या बात. They had to get me. पैसे की तो कोई बात नहीं हुई थी. Until then, I never used to charge money for my talks. I never used to charge money for my talks. कोई बुला रहा है, अगर बंबई से कानपुर चला गया मैं, कोई रायपुर बुला रहा है, तो I would go as long as they're paying for my airfare, boarding, lodging, food, accommodation, transport, it's fine. I would go, fly, give my talk and come back. अब भाई प्राइवेट जहाज आ रहा है, उसके अंदर सिर्फ पायलट, एयर होस्टेस और मैं. हम गए बैंगलोर. जैसे कि अभी मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, खाने पे आ जाना, गाड़ी में आके लाइक दैट एक जहाज आया, मैं गया. उस दिन मैंने जिंदगी के सबसे ज्यादा फोटोग्राफ्स लिए. क्यों? क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है भाई. अभी मैं प्राइवेट जहाज में जा रहा हूँ, हर जगह से अलग अलग एंगल से मैंने फोटोग्राफ ली. आई गेव द टॉक के बाद द चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी, एब्सोल्युटली, उसके बाद चेयरमैन ऑफ दैट कंपनी गेव मी अ शॉल, अ मोमेंटो एंड एनवेलप. अब भैया मैंने शॉल और मोमेंटो मेज पे रखा बड़े कायदे से, इज्जत से. एनवेलप को फोल्ड किया, जेब में रखा अपने, और मैं तेजी से निकल गया. कहाँ? बाथरूम की तरफ. अच्छा. बाथरूम की तरफ, ये देखने के लिए कि इस एनवेलप में आखिर है क्या. कार्ड है, थैंक यू नोट है, लव लेटर है, क्या है. तो मैं पहुंचा वहां पे, मैं एनवेलप खोला. जब एनवेलप मैंने खोला तब मैं देखा उसमें एक चेक था, 1 लाख से ऊपर का चेक. A check for 1,01,000 rupees. And I spoke for barely 40 minutes, I presume. I can go on speaking right from 4 minutes to 40 hours. कोई वो इश्यू नहीं है, ठीक है. अब भाई 1,01,000 रुपए का, तो मैं दिस इज अ लॉट ऑफ मनी. प्राइवेट जहाज में उड़ो, आप लाख रुपए लेके वापस भी जाओ. मजे आ गए भाई, अच्छा खाना भी खाओ. And then after that, I said thank you to everyone and I came back to Mumbai on time. हम दोपहर तक वापस, after lunch we were back in Mumbai. I could go for my audition on time. I could go for my rehearsal on time. I could attend the play, the show also on time. हो गया. Who minds it? भैया एक हफ्ते के बाद something unimaginable happened. अगर आप इसको unimaginable बोलते हैं ना, ये तो कुछ भी नहीं है. इस अब आगे क्या होने वाला है, इससे भी unimaginable चीज है. देखो सुबह को 8 बजे मैं CNN News 18 के स्टूडियो में जा रहा था. I had a live over there early morning. तो मैं गाड़ी में था, तब एक unknown नंबर कॉल आ गई. तो and I was doing my research. I was reading up. I read a lot, and especially for my TV panel, ताकि मेरे को facts, fiction, पूरे मतलब facts, figures, data on my fingertips रहे, ताकि जब मैं पैनल पे बोलूं, मैं आवाज तेज ना करूं, बल्कि facts कोट कर दूं. दुनिया अपने आप चुप हो जाती है. एक चैनल, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, वो आप जानती हैं, वहां पे चलाना पड़ता है, वहां पे चीखना पड़ता है. आपने देखा भी है, आपने मेरे को मैसेज भी किया था. तो खैर, तो वहां पे चीखना पड़ता है. उसके अलावा हर एक में आई पुट माय पॉइंट्स अक्रॉस विद अ लॉट ऑफ डिग्निटी, इन अ वेरी काम, कंपोज्ड, इन अ वेरी ग्रेसफुल मैनर. अब हुआ यूं,
उन्हें बोला कि नहीं, मैं कहा कैन आई स्पीक टू लेटर ऑन, वी आर कॉलिंग फ्रॉम HDFC लाइफ इंश्योरेंस। तो मुझे HDFC लाइफ इंश्योरेंस मतलब वो प्रोमो कॉल नहीं आती कि वो लाइफ इंश्योरेंस करवा लो, ये वो ये। मैं यार अभी आई एम गोइंग टू अ स्टूडियो, आई विल स्पीक लेटर ऑन। नो, इट्स फॉर अ कॉर्पोरेट टॉक, वी वांट यू टू कम फॉर एन इवेंट। तो मैं अच्छा, और स्पीकिंग इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट, अच्छा ठीक है, हाँ बोलो। तो उन्हें बात की, देन दे आस्क्ड मी हाउ मच डू यू चार्ज फॉर एन आवर। और मैं तो कुछ पैसे उस टाइम तक चार्ज नहीं करता था एज अ स्पीकर। तो मैंने बोला कि भाई आई विल डिस्कस आर्ट विद यू, फॉर कॉमर्स यू प्लीज स्पीक टू माई मैनेजर, ही विल डिस्कस दैट विद यू। अब मैंने उनसे बात करी कि भाई ओके कैसे क्या करना है, हु इज गोइंग टू बी द ऑडियंस, कितने घंटे का होना चाहिए टॉक, एंड आई सेड आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। अब मेरा दिमाग चला था लाइव पे कि वो लाइव भी दुनिया देख रही होगी, हाउ विल आई स्पीक, हाउ विल आई पुट फॉरवर्ड माय पॉइंट्स, दिस दैट। लाइव खत्म हुआ, मैंने उनको कॉल करी, then I gave them the number of this person who would mediate between us, because it gets uncomfortable at times to speak about money yourself. तो मैं नंबर दिया, the person mediated, that person called, I told him भैया ऐसा है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, वेरी प्रेस्टिजियस कॉन्ट्रैक्ट, इट्स अ बिग ब्रांड, इट्स अ बिग कंपनी, एंड मैं बड़े फक्र से उस कंपनी का नाम लेता हूँ, बड़े फक्र से, क्योंकि हर एक को मौका तो मिलता नहीं है, मेरे को मौका मिला है वो इतनी अच्छी बड़ी कंपनी में आके कॉर्पोरेट टॉक देना। तो दैट पर्सन कॉल्ड अप, ऐसे अली भाई बहुत बहुत मुबारक हो, दे हैव फाइनलाइज्ड यू, और अब अपनी ईमेल चेक करिए, उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट आया होगा, आप उसका एक प्रिंट आउट निकालिए, उस पे साइन करिए, स्कैन करिए और वापस मेल करिए फटाफट। एंड द कॉन्ट्रैक्ट अबा आई गॉट पेड, जहां पे मैं था कि भाई मैं 1 लाख, मैं दिल में तो आया था मैं इनसे 1 लाख रुपए मांगूंगा, 1 लाख से कम नहीं मांगूंगा भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। और तो मैं उसको लग लिया, आई टोल्ड हिम अगर भैया पैसे मिले या ना मिले, टॉक तो मैं करूंगा उनके साथ, इट्स अ ब्रांड, ठीक है। आई वाज प्रिपेयर्ड कि 1 लाख से कम में भी कोई बात नहीं, कितने भी कम मिले कर कोई बात। नो, आई गॉट पेड more than 10 times. Wow. 10.5 lakh rupees for one single speaking contract, which means, thank you, which means over $1 million उस ब्रैकेट में हो गया, मैं उसमें टच हो गया, एंड पेमेंट भी ऑन टाइम आया। और जहां पे मैं थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, थिएटर में वी डोंट अर्न मनी, लाइक वी डू इट फॉर अ पैशन, टू होन आवर स्किल्स, टू ओन द क्राफ्ट। इट्स लाइक मशीनरी होती है ना, मशीनरी पे जंग लग जाता है, अगर वो इस्तेमाल नहीं हो तो उस पे आप तेल लगाते रहिए, कीप ऑयलिंग द मशीनरी, वो चलती रहेगी। सिमिलरली थिएटर लाइक एन एक्सरसाइज, अपने क्राफ्ट को जिंदा रखने के लिए हम थिएटर करते हैं और मजा भी आता है। अब यहाँ पे now within no time I came into the bracket of one of the highest paid motivational speakers of the country. फिर जहां पे मैं जाता था वहां पे लोकल मीडिया वहां की रिपोर्ट करती थी that do you know he is the highest paid motivational speaker of the country, he charges over ₹1 lakh, over $1 million for an hour. तो भैया ईमानदारी की बात बताता हूँ मैं, ईमानदार, I'm just candidly sharing something with you because you are a very special person, so I'll share the secret with you. भाई ऐसा नहीं है कि हर 1 घंटे में मैं ओवर $1 million कमा रहा हूं। हाँ, ये बात जरूर है कि ऐसे अब कितने बार आपको इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, रोज तो नहीं मिलेगा, और उसका फायदा भी हुआ और उसका नुकसान भी हुआ। फायदा क्या हुआ आपको बताता हूं। फायदा ये हुआ, हाँ, और फायदा ये हुआ that I came in the bracket of one of the top most motivational speakers of the country, जो मैं अपने आप को हरगिज नहीं मानता था, अभी भी नहीं मानता हूं, बट जो लोग मेरी टॉक सुनते हैं वो उनका कहना है भाई अपने काम के बारे में हम क्या कहें, हम तो कुछ नहीं कह सकते, हम अपना काम अपना बेस्ट डिलीवर कर सकते हैं, ऑडियंस डिसाइड करेगी। और कहीं ना कहीं अब जब मैं बोलता हूं, कहीं ना कहीं वो दिल से बोलता हूं, मैं प्रिपेयर्ड नहीं आता कि भाई ये है सवाल, ये जवाब, ये पूछेंगे, ये जवाब, अपने दिल से बोलो। और जब आप दिल से बोलेंगे ना, वो कहीं ना कहीं लोगों से कनेक्ट कर जाएगा। और जब लोगों से वो कनेक्ट हो जाती है आपकी बात, आपकी दिल की आवाज वहां तक पहुंच जाती है, लोग आपको पसंद करते हैं। और जब लोग आपको पसंद करते हैं, उसे ताली मिलती है, उसी से ही आपकी ब्रांडिंग बढ़ती है, उसी से ही यू कम इन दैट लीग। तो आई थिंक मेरे साथ भी कुछ
कुछ ऐसे ही हुआ. I think that is the reason I presume कि जब मैं बैंगलोर गया था, so पैसे की तो बात हुई नहीं थी, मेरे को उम्मीद भी नहीं थी कि पैसे भी मिलेंगे. शॉल दिया, मोमेंटो दिया, कस्टमरी, ठीक है. आई सस्पेक्ट, आई डोंट नो कि सीएमडी ने वहीं मेरी टॉक सुन के हाथों हाथ वहीं पे चेक काट के एनवेलप पे डाला होगा. आई प्रिज्यूम दैट. नहीं तो ऐसा होता तो पहले से बात कर रखते ना, आपको इतने पैसे मिलेंगे भैया स्टॉक के लिए. सो आई थिंक व्हेन यू कैन कनेक्ट विद पीपल, तो मेरा ऐसा मानना है, चाहे ऑडियंस एक हो, लाइक यू एंड मी, वन ऑडियंस, और 1 मिलियन, इस वीडियो को लोग देखेंगे, लोग शेयर करेंगे, और इसके विद इन नो टाइम 1 मिलियन शेयर हो जाएंगे. आप देख लेना. तो मेरा ऐसा मानना है कि ऑडियंस एक हो या 1 मिलियन, there's only one common thing everyone is looking for, and that one common thing is a connection. Very right. You connect with the audience, that's it, you are theirs. Yes. और उसमें आपको ऑडियंस का होना बहुत जरूरी होता है. एक मिनट, someone is knocking. हाँ, तो I think you have to connect. That is most important. I'm so sorry. इस तरफ मत आएगा, मैं एक इंटरव्यू दे रहा हूँ, इस तरफ से मत आएगा. इतना मत आएगा. अच्छा. Then now that my journey as a motivational speaker started, and उसके बाद फिर Cambridge University last year had invited me over to UK. So they were doing all the arrangements for me, everything. But I could not go to Cambridge University because I told you I was doing this film with Priyanka Chopra, The Broken Window. अब क्या हुआ? They said, don't worry, do a webinar for us. भाई ये सेमिनार क्या होता है तो मुझे मालूम था, मगर ये वेबिनार क्या होता है, ये चीज मेरे नहीं थी. So what I did was I couldn't really sign up for these apps. अब जब ये पैंडेमिक शुरू हुआ तो मेरे को सिखाया गया that when the going gets tough, the tough get going. तो हमने फौज में सुन रखा था, ठीक है, you know it. The going gets tough. ब्रिगेडियर सुशील भसीन ने हमको पीएसआई ग्रुप में बताया था, द टफ गेट ऑनलाइन, और सैम ने उनको बताया. तो इट्स लाइक यू नो, इट्स अ विशियस सर्कल, इट गोस अराउंड, यू स्प्रेड अराउंड. और ये धन, ये विद्या, ये स्किल, ये नॉलेज, ये एबिलिटी, ये टैलेंट वो है कि कोई भी आपको इससे चुरा नहीं सकता. जितना आप बांटोगे उतना बढ़ेगी. एंड इट इज अ ग्रेट फीलिंग, इट्स अ ग्रेट फीलिंग. आई साइंड अप फॉर द ऑल दीज एप्स, और उसके बाद हुआ यूं कि उसके मेरे को 2 दिन लगे वो मेंटल ब्लॉक तोड़ने के लिए. मेंटल ब्लॉक क्या होता है? मेंटल ब्लॉक है भैया, एक घोड़ा बंधा हुआ है, एक वुडन लॉग से, उसके जहन में है कि भाई वो बंधा हुआ है तो वो वहां से भाग नहीं सकता, मगर अगर वो चाहे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता वो, तो उसने लेके वो भागे. दैट इज ब्रेकिंग अ मेंटल ब्लॉक. तो मैंने वो मेंटल ब्लॉक तोड़ा. And it took me 2 days, 2 nights. I worked very hard to learn the features. कैसे Google Meet, कैसे WebEx, कैसे Zoom इस्तेमाल होता है. और उसके 2 घंटे के बाद I was on paid webinars, back to back, day, night, evening, morning, early morning. And I'm still very hungry and greedy. And that hunger is very important. A wise man once said, stay hungry, stay foolish. And it's very important to have that hunger, that desire, that passion in you. Yes. And वही एक hunger है, वही एक desire है जो आपको कहीं ना कहीं लेके जाएगी. The moment you think you have arrived, you will have nowhere to go. So keep learning, keep striving, keep working hard. And here I am speaking to you on Spotlight with Abha. So Major, now this was your totally professional journey we are discussing till now. Major की अपनी एक family भी है, right? तो family में कौन-कौन है, and how do you pursue your family life? इतना busy schedule होते हुए अपने son को time देना, अपनी family को time देना, how do you manage that? I have a very loving wife, a very beautiful wife. She's been my childhood friend. And I have a son, he is 7 years old, he's in class 3. अब अपने फैमिली को टाइम कैसे देना? I think it's very simple. Where there's a will, there's a way. भाई, I don't think anyone and everyone is ever so busy कि अपनी फैमिली लाइफ को कोई इग्नोर करेगा. You don't get time, you have to make time. I have seen the busiest person in this world बोलूंगा, that's my father.
when he was a deputy chief staff, work so hard. When he was a vice chancellor of Aligarh Muslim University, he would work so hard. Even after, and that man has not retired till today. My father, till now, he's in his early 70s. He is the pro chancellor of the University of Science and Technology, Meghalaya. He's based in Gurgaon. I have not seen him retire for a single yet. In family man, someone to really emulate, someone to really look up to. And I feel, अब तो हम online का, so I think it's very, I mean, when you have to make time, and I enjoy spending time with my family. I look forward to that. I enjoy playing with my son. मजा आता है मेरे को, and he's my best friend. Wow. So it is a stress buster. It's a great feeling. Yeah, it's a great feeling. So कोई अगर बोले मैं इतना बिजी हूँ अपने काम में कि फैमिली लाइफ को इग्नोर कर पा रहा हूँ, आई विल नॉट बिलीव इट, आई विल नॉट बाय इट. और खास तौर से अभी इस पैंडेमिक में भाई आप घर से काम कर रहे हैं. हाँ, ये देखिए दो बातें हैं. आप घर से दूर रह के ऑफिस जाते हैं, शाम को आते हैं, बट येट यू कैन रिमेन कनेक्टेड विद योर फैमिली. आप घर में हैं 24 घंटे, मगर आप फोन पे हैं. ज़हनी तौर पे तो आप वर्चुअल वर्ल्ड में हैं. यू आर फिजिकली देयर बट मेंटली नॉट देयर. Yes. Is that called giving time to your family? No, I don't think so. I could be leaving my house at 8 in the morning, coming back at 8 at night. Okay, physically I'm away, but ज़हनी तौर पे तो I am connected from home. I am giving them time. My thoughts are there. और रात को 8 बजे के बाद भला ही आप बच्चे घर 1 घंटा खेल लो. भाई मेज पे एक उसूल तो है हमारा. घर में सब लोग एक टाइम पे एक ही साथ खाने की मेज पे बैठेंगे. That's good. A family that eats together lives together. Yes. And stays together. Distance, exactly. See, अब for example, अभी social distancing की बात हो रही है. I don't think social distancing है बिल्कुल भी, कहीं से भी नहीं है. हाँ, physical distancing है. Yes. हमने तो ऑनलाइन पार्टीज कर रखी हैं. My old classmates, my co-mates from the army, हम लोग वर्चुअल वर्ल्ड पे मिले हैं. We have had dance parties, we've had musical nights. So socializing कहाँ रुकी? नहीं रुकी. Socializing तो अभी भी है. Physical distancing जरूर हुई है. So it's up to a person whether how you should enjoy spending time with them. Yes. It's as simple as that. When you enjoy spending time with your loved and near and dear ones, you will. Today people are stressed. अरे मैं बहुत स्ट्रेस्ड हूं, मेरे को काम पे ध्यान देना है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है. क्यों? बड़ा स्ट्रेस्ड हूं मैं काम को लेके. वो इसलिए स्ट्रेस्ड है क्योंकि वो अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं. टाइम नहीं दे रहे इसलिए नहीं, वो स्ट्रेस्ड है इसलिए टाइम दे रहे. ना ना ना, वो सी people stop spending time with family because they're stressed. I would say you are not spending time with your family, and that is the reason why you are stressed. Very true. The true happiness lies with your family. So if you see your family happy and satisfied, that naturally comes to you, and automatically you start feeling relaxed and you pay attention to your work, right? So I just want to ask, Exactly. do you go to the PTMs of your son? Right now it is locked down, but normally parent-teacher meetings. I have not missed a single parent-teacher meeting till today, and I'm very surprised to see that maximum mothers come. My wife and I go regularly. जब भी कोई function होता है स्कूल में, we make it a point. We both go together. That's great. और उस टाइम पे अगर मेरे को कोई काम भी आ रहा होता है ना, वो that work can wait. I will make. That's my first priority. You have to get your priorities straight in life. और अगर फैमिली जिसकी priority, भाई जब आपके घर से सब ठीक ठाक होएगा ना, तभी बाहर से सब ठीक ठाक होएगा ना. घर से ठीक ठाक नहीं है तो बाहर से कैसे ठीक ठाक होएगा. So with that note, we are coming towards the end of our program, Spotlight with Abha, right? And today we had Major Muhammad Ali into the spotlight once again. I want to thank him with core of my heart and from my viewers to give his so precious time to all of us and share his view and share his stories, success story with all of us. So with that note, I take leave and will come with some other personality in the spotlight
with Abha next time. Till then, Namaskar, Jai Hind.